कसमा खा लो, भीम दा अज संविधान बचा लो, भीम दा अज संविधान बचा लो, भीम दा अज संविधान बचा लो। महापंचायत च कसमा खा लो, भीम दा अज संविधान बचा लो। रत्तू रंधावे वाला आखे, भैड़ी सोच ते करे सो आपे, रत्तू रंधावे वाला आखे, भैड़ी सोच ते करो से आपे। बिट्टू रखियां जिन्हां ने, बिट्टू रखियां जिन्हां ने, यारां ने हाय लुट ले इना जलम सरकारां ने, हाय लुट ले इना जलम सरकारां ने, हाय लुट ले इना मनुवादी सरकारां ने, हाय लुट ले यारां ने हाय लुट ले, इना जालम सरकारां ने हाय लुट ले। आकाश नंद जी आ रहे हैं, दो लाइनां लिखियां रत्तू रंधावा जी ने, पैंती धन्यवाद। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਸਫਾਈ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਚੰਦਰੀਏ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ, ਹਾਥੀ ਲੰਘਣਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇ ਵੈਰ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਕਾਸ਼ ਨੰਦ ਦੀ ਆਈ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਵੈਰ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਕਾਸ਼ ਨੰਦ ਦੀ ਆਈ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਵੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਸਵੀਰ ਕੜੀ ਦੀ ਆਈ। हेलो ਜੈ ਭੀਮ। हेलो तीर साहब अगले कलाकार हाँ साहब किन्ने रह गए कलाकार? हाकम पंछी जी रह गए सिर्फ ते क्योंकि प्रिया 2.5 मिनट च नवेड़ साडे आगू हाँ जी। सहबान ने भी अपनी गल हाकम पंछी जी तो बाद प्रिया बंगा जी, उस तो बाद साडा प्रोग्राम इधरों समाप्त है। आओ जी पंछी साहब। सत्कारयोग भाई क्या जय भीम जय भारत। हुक्म होया गीत कहन दा प्यारी साध संगत जीओ, बड़ा टाइम नहीं गा, गोली कहन लगा ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਸੰਗਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲਾ ਤੜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲਾ ਤੜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਬੰਗਾ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੜਾ। ਅਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। BVF ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਧ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਤੇ। ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਆ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੋਰੇ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਈ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਖੁੱਤਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਬਈ, ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਢੀਕਦਾ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਆਰਟ। BVF ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ
सुती हुई कौम जगाई वाह वे वाह मिशन तेरे तो बन के नेता भुल गए जो एहसान जी वाह मिशन तेरे तो बन के नेता भुल भुल गए। गए जो एहसान जी मिशन तेरे नु खा गए मिशन तेरे नु खा गए कौन खा गए मिशन नु साडी कौम दे गद्दार मिशन तेरे नु खा गए कोकड़ू साहब कांची राम जी मिशन तेरे नु खा गए कोकड़ू साहब कांची राम जी ਉਹ ਚੋਰ ਕਿ ਚੋ ਬ- ਚੁਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਕੜੂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਜੈ ਭੀਮ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਆਓ ਜੀ रेडी हो जी रेडी 1 2 1 2 3 4 ताड़ी लाके पता लगना चाहिए ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਲਾਈਏ ਜੀ ਕਦੇ ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਕਾੜ ਨਾ ਚਕਾਈਏ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਅਸਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਅਸਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਅਸਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਅਸਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹਾਥੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀ ਜਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲੈ ਜਜ਼ਬੇ ਪਾੜੇ ਬਸ ਬਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਅਸਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਅਸਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ ਸਭ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਬਣਾ ਗਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਾਈ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗਏ ਸਭ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਬਣਾ ਗਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਾਈ ਤਖਤ ਬਣਾ ਗਏ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਾਈ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਸੱਟੇ ਜਾਈ ਤੇ ਬੁੱਕਦੇ ਚੜ ਕੇ ਸੱਟੇ ਜਾਈ ਤੇ ਬੁੱਕਦੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਪਾੜੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੱਥੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ ਜੀਣਾ ਜਾਣ ਖਾਨਾ ਭੀਮ ਜੀ ਸਿਖਾ ਗਏ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਮ ਪੜਾ ਗਏ ਕਲਮ ਪੜਾ ਗਏ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਮ ਪੜਾ ਗਏ ਜੀਣਾ ਜਾਣ ਖਾਨਾ ਭੀਮ ਜੀ ਸਿਖਾ ਗਏ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਮ ਪੜਾ ਗਏ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਮ ਪੜਾ ਗਏ ਦਾਤੀ ਪੱਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਮ ਪੜਾ ਗਏ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦਵਾੜੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਓ ਪੰਚਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ MLA ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ कांशी राम जी अमर रहे। भैन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। सत्कारयोग साथियों, अज असीं सारे समुचे बहुजन समाज पार्टी दे पंजाब दे सारे वर्कर साहबान, बहुजन समाज पार्टी DS4 और बाम सेव दे संस्थापक साडे महान रहबर साहब श्री कांशी राम जी दे प्री निर्वाण दिवस यानी बरसी समागम ते असीं अज इत्थे इकट्ठे होए हाँ और अज दे इस मौके ते पार्टी वालों संविधान बचाओ महा रैली रखी गई आ। और मैं बस दो चार जिहड़ा 1 मिनट मैनूं मिलिया मैं उही कहना चाहुंदा भी जदों अज असीं साहब दे प्री निर्वाण दिवस ते असीं सारे इकट्ठे होए हाँ और असीं बड़ी जद्दोजहद करके बई जिहड़ा साहब का काफला सी उहनूं असीं वधाउण लगे हाँ, कारवां नूं वधाउण लगे हाँ। और मैं महसूस करदा भी जदों असीं आप जद्दोजहद करदे पए हाँ सरकारां दे खिलाफ, इस प्रबंध दे खिलाफ, ते साहब कांशी राम जी दी किड्डी वड्डी महानता सी भी जेड़ा उन्हां ने झंडा गड्डिया वो उन्हां दे जाण तो बाद भी सरकारां दे जोर दे बावजूद इस देश विच लहरा रहा आ। इस करके साहब श्री कांशी राम जी दी ये महानता आ भी जिस तरह साहब ने कहा सी भी असी मैं पता नहीं अपना राज भाग देखना कि नहीं देखना, पर मैं इस देश दे किरती कामियां दे विच इदां दी अणख जगा देवांगा भी जिहड़ा झुग्गी वाला बंदा भी राज भाग दी गल करूंगा। ते साहब कांशी राम जी दी जिहड़ी नेक कमाई सी ओदा करिश्मा आ। अज सारे साथी कोई मोटरसाइकिलों ते कोई हाथियां ते कोई अपने साधना ते जिहड़ा तुरिया होया है ते साहब कांशी राम जी दे जिहड़े नारे सी वो अज भी सानू साडियां जिंदगियां नू रचनाउंदे आ और सानू इस प्रबंध दे खिलाफ लड़न लई और इनू बदलण दे लई सानू प्रेरित करदे आ। जिस तरह नारा सी वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। मान लो सानू SC OBC नू माइनस करके इस देश दे विच कोई राज नहीं कर सकता। जिन्नी जिन्हां दी संख्या भारी उन्नी उन्हां दी हिस्सेदारी। इस करके बाबा साहब ने रिजर्वेशन दे राही जिहड़ा सानू इस देश दे विच सदियां तो बाद नुमाइंदगी लैके दित्ती ते बाबा साहब ते जाण तो बाद जिहड़े साहब कांशी राम जी आ, जदों साहब कांशी राम जी ने चमचा युग लिखी तो उन्होंने कहा भी कांग्रेस और इत्थे दीयां पार्टियां ने जिहड़ी रिजर्वेशन आ उहदे राही चमचे पैदा कर दिते आ ते इस करके उन्होंने कहा भी समा हैगा असीं सिद्धी राजनीतिक लड़ाई दईए। ते साहब कांशी राम जी ये महानता आ भी उन्होंने सदियां तो शोषित लोग गुलामी व्यवस्था विच बना के रहे लोकां नूं इस देश दे प्रबंध दे खिलाफ सिद्धी जड़ी लड़ाई लड़न लई जड़ा उन्हां नूं तैयार कीता, जिहड़ी अज भी भैन कुमारी मायावती जी दी असीं अगवाई दे विच असीं लड़ रहे हां। ते मेरी सारे साथियां नूं यही बेनती आ भी साहब कांशी राम जी दी सोच नूं फलसफे नूं समझिए ते जिहड़ा उन्हां दी सोच मुताबिक असीं बसपा राही प्रबंध स्थापित करना चाहुंदे सी उहदे लई असीं सारे जी जान नाल जुटिए। इन्नियां बेनतियां नाल एक वारी फिर मैं अपने वल्लों साहब कांशी राम साडे महान रहबर नूं याद करदा होया उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेट करदा आ और उन्हां प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराउंदे आ भी जिहड़ा उन्हां दा सपना सी, जिहड़ा उन्हां दा कारवा सी, असीं मरदे दम तक उहनूं अगे वधावांगे ते इस देश विच उन्हां दी सोच दा प्रबंध कायम करके रहांगे। इन्नियां बेनतियां धन्नवाद।
जय भीम जय भारत। साहब कांशी राम जी अमर रहे। ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰੱਤੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਰੂਪਲਾਲ ਧੀਰ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਥੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੀਤ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਔਰ 84-85 2 ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਆਖਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਮ ਸੇਵ DS4 ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। आओ प्रण करिए और उन्होंने जरा मैं इस मौके ते अपने वालों फुल पेट करता होया इजाजत चाहांगा। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ BVF ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾ, ਝੁਰਮਟ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੋਏ ਮੀਡੀਆ ਬੰਧੂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਬੰਧੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 1-1 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਝੁਰਮਟ BVF ਦੇ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਝੁਰਮਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਬਈ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬਾਹਰ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ BVF ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ D ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ 17ਵਾਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, MLA ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਮਨੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਥਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਡਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਨ ਮਰਾਦਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂੰਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਦਿਆਂਗੇ ਸੁਣ ਕੇ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, देश
देश की नेता कैसी हो, ਧਾਰੂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਂਤਰਾ ਮੱਲੀਆਂ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। जो चट्टानों को हिला दे उसे तूफान कहते हैं, जो भोजन को जगा दे गड़ी साहब कहते हैं। आज ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਲਦੇਵ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ और बाकी सारी लीडरशिप सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और गुरु ने कहा सी भी जोग ना जुगती सुटे संसार। और सत्कारयोग साथियों समय समय सर सानू जुगतियां मिलियां। अज भैन मायावती ने जुगती दित्ती है कि तुसी सैक्टर लैवल और बूथ लैवल का ढांचा बना दिओ। जे सैक्टर और बूथ लैवल का ढांचा असीं बना दिता ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ केजरीवाल सर और भगवंत मान ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। जय भीम जय भारत। मैं बेनती करदा श्री गुलाल सैला जी 1 मिनट ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵਰਕਰ, ਸਮਰਥਕ ਸਹਿਬਾਨ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਪਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਦੇਵ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। 1998 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ क्या है, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ क्या ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सब कांशी राम जी ने 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ।
ਨਕੋਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 3 ਨਾਅਰੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ ਚੌਥਾ ਨਾਅਰਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DS4 ਵਾਮ ਸੇਵ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ 17ਵਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਓ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਥਾਪਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸਾਹਿਬ काशी राम जी अमर है। बाबा साहब का दूसरा नाम, बाबा साहब का दूसरा नाम, साहब काशी राम जी अमर है। भैण कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जी आगे बढ़ो। धन्यवाद जी। मैं बेनती करदा मानयोग अजीत नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशी राम, कांशी राम, सब काशी राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है, सब काशी राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है। भैण कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैण कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैण कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, सब काशी राम जी अमर रहे, अमर है, अमर है। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशी राम, कांशी राम, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे।
रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो। सबका श्री राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का दूसरा नाम कांची राम, कांची राम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबका श्री राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काशी राम तेरी नेक कमाई, जिसने सुती कौम जगाई, काशी राम साहब तेरी नेक कमाई, जिसने सुती कौम जगाई। बच्चा बच्चा भीम का, कांची राम की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, कांची राम की टीम का। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्कारयोग साथियों, बाहर हजारां दा इकट्ठ है। गाड़ी साडे मुख मेहमान साहब दी गड्डी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, आकाश आनंद जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, आकाश आनंद जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। दोए बाहां खड़ियां करके, दोए बाहां 5 मिनट थोड़ियां खड़ियां रहन ताजो पूरी मीडिया भी कवरेज कर ले। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सबका श्री राम जी अमर रहे, बाबा साहब का दूसरा नाम कांची राम, कांची राम। काशी राम थोड़ी तन कमाई, जिसने सुती कौम जगाई, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी के वास्ते खाली कर दो रास्ते। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की पीएम कैसी हो, मायावती जैसी हो, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 आकाश आनंद जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, दोए बाहां खड़ियां करके आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद
जिंदाबाद 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 आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 देश की नेता कैसी हो मायावती जैसी हो, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 आकाश आनंद जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं आकाश आनंद जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 सबका श्री राम जी अमर रहे अमर रहे, अमर रहे, सबका श्री राम जी अमर रहे अमर रहे, अमर रहे। सबका श्री राम जी अमर रहे अमर रहे बाबा सबका दूसरा नाम जय राम, जय राम। धन्यवाद मानयोग श्री काश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, श्री आनंद कुमार जी राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी मंच के उत्ते विराजमान हो गए आ। मैं समुचे पंजाब के वर्कर साथियों को अपील करदा, दोए हाथ खड़े करके आकाश जी के नाम का नारा मैदान चो आना चाहिए जी। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, लाओ नारा बिचों। देख ए आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 धन्यवाद जी। मैं बेनती करदा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री बैनीवाल साहब, श्री आकाश आनंद जी और श्री आनंद कुमार जी नूं नाल एस्कॉर्ट करते हुए साहब काशी राम जी की प्रतिमा के उत्ते फुल अर्पण करन। श्री उन्हां दे नाल श्री विपल कुमार जी नाल होणगे और बीबी कुलवंत कौर जी नाल होणगे। बाकी साथियों नूं मेरी बेनती आ कि अपने अपने स्थानां ते खड़े होना है। साहब काशी राम जी अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। पूरे देश में एक ही नाम, राम कांची राम, पूरे देश में एक ही नाम, कांची राम, कांची राम। धन्यवाद। मैं बेनती करदा जिला प्रधान हुशियारपुर श्री दलजीत राय जी, स्टेट की लीडरशिप मानयोग बैनीवाल साहब, कृपा करके माला थोड़े हत्थां दे नाल श्री आकाश आनंद जी और श्री बाकी सारे साथी कृपा करके अपनी अपनी जगह ते प्लीज। मेरे साथियों को बेनती है प्लीज, ठेकेदार जी उसे लाइन सीधे चले जाओ प्लीज। फोटो कवरेज जी आ प्लीज, मेरी बेनती है 4 कदम प्लीज प्लीज भाई। बाकी लीडरशिप प्लीज प्लीज। धन्यवाद। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, देश की पीएम कैसी हो। मायावती जैसी हो। धन्यवाद जी। बहुजन समाज पार्टी दी सूबा कमेटी ने समुचे वर्करां दे वलों, समुचे पंजाबियां दे वलों आनंद जी और राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट श्री आनंद कुमार जी का स्वागत किया। मैं तहे दिल तो उन्होंने इस स्वीकार किया, मैं शुक्रिया अदा करदा।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਰਾਮ ਮੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ 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 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। शाबाश। बीएसपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी ते पंजाब दे समुचे वर्करां वालों चुनाव चिन्ह दे के जेड़ा पूरा सुंड चक के दोए पैर चक के पंजाबियों की हिम्मत नूं उन्हां दी संघर्ष नूं जेड़ा वो याद कर रहा, चिन्ह मानयोग श्री आनंद कुमार जी राष्ट्रीय उप प्रधान और श्री आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोआर्डीनेटर जी नूं भेंट किया। मैं बेनती करदा एक प्यारी जी फोटो श्री आकाश आनंद जी, एक बहुत बड़ी फोटो एक पूरे इंडिया च वायरल हो रही है, जेड़ा टैगलाइन चल रहा का हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद जी। मैं बेनती करदा मंच नूं, कलाकारां दे मंच नूं एक बहुत ही प्यारा लाइनां दा शेर बसपा दे आकाश दे उत्ते, नीले नीले आकाश दे उत्ते, बहुजन समाज पार्टी दे आकाश दे उत्ते एक धरू तारा चमकन लगा आ। बहुजन समाज दे अंदोलन एक धरू तारा चमकन लगा आ। उस तारे दे नाम ते, उस आकाश दे नाम ते मैं कलाकारां नूं बेनती करदा भी तुरंत इमीडिएट रेडी रेडी 1 2 3 जी। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। आज सुनना भी है मगर बोलना भी, जिथे थानू लग्या मगर बोलने की लोड़ है। पूरा पंडाल मगर बुलाना धीर साहब। बाबा साहब ते कंशी राम जी दा ਇਹ ਗੀਤ ਨੀਲਾ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਬ ਉੱਡਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਆਇਆ लेके थापड़ा मायावती भैन जी तो बन के ढाल लोहे दी कंध आया आकाश आनंद आया
ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਾਣੀ ਬੰਡ ਦਾ ਭੂਤ ਉਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਬੰਡ ਦਾ ਭੂਤ ਉਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ
ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10 14 ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੂਚੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਹੱਲਾ ਮਹੱਲਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਮਐਲਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री कांशी राम जी को
श्रद्धा सुमन को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए आज पंजाब सूबे की साहब श्री कांशीराम जी के 70वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित सभी कार्यकर्ता पंजाब से इकट्ठा हुए। इस मौके पर मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तरासे वे हीरे, युवा दिलों की धड़कन, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उपस्थित हुए आदरणीय श्री आकाश आनंद जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं, इनके लिए भी स्वागत चाहते हैं। सम्मानित साथियों, हम आज आपको तालियां बजाने के लिए नहीं कहेंगे सम्मानित साथियों, क्योंकि परिनिर्वाण दिवस का मामला है और परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सम्मानित साथियों तालियां बजाने के लिए नहीं कहेंगे। आप लोग जैसे भी स्वागत करना चाहें वैसे स्वागत आप लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी जी, प्रदेश के इकलौता विधायक और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री नक्षत्र पाल जी, अजीत सिंह भैणी जी जो बैकवर्ड समाज से हैं, अजीत सिंह भैणी जी, और बखूबी से पूरे बैकवर्ड के को काम करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, पूरे पंजाब में जाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित विपुल कुमार जी और समस्त स्टेट की कमेटी, समस्त जिले की कमेटी, लोकसभा कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर की कमेटी, बूथ की कमेटी, बीबीएफ के मेरे साथी, कलाकार, संगीत मंडली, जितने भी गायक हैं उन सभी का आदर सम्मान करते हुए, बामसेप के मेरे सभी साथी, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, मातृशक्ति, सभी का आदर सम्मान करते हुए सम्मानित साथियों, मेरे बहुजन समाज पार्टी के सभी शुभचिंतकों, सम्मानित साथियों, आज का दिन उस मसीहा के परिनिर्वाण दिवस का दिन है जिन्होंने अपना सुख चैन खत्म करके हमारे बच्चों को, आप लोगों को, हमारे बच्चे के भविष्य को चैन देने का काम कांशीराम जी पैदा करके चले गए। आज अकेले कांशीराम जी नहीं है, आज अकेले साहब कांशीराम जी नहीं है। जब कांशीराम जी संघर्ष में उतरे थे, इस भारत देश की राजनीति को, इस दलित, इस यहाँ पे मजलूमों की राजनीति में उतरे सम्मानित साथियों, जिस टाइम पे उन्होंने दीन दुखियों को सोते हुए जगाया सम्मानित साथियों, उनकी नींद को तोड़ा गया, उस टाइम अकेले कांशीराम जी थे। आज यहाँ पे करोड़ों करोड़ों कांशीराम जी पैदा करके चले गए। और सम्मानित साथियों, ये खुशी की बात है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम पहरा देने का काम कर रहे हैं उनकी सोच को। एक नारा देते हैं, कांशीराम ही तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके। और सम्मानित साथियों, ये पहरा कैसे दिया जाएगा? कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। इसलिए सम्मानित साथियों, ये जागने की जरूरत है। जो साहब ने नारा दिया, जब साहब कांशीराम जी सोते हुए लोगों को जगाने का काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है सम्मानित साथियों, आप लोग जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के सभी सुचिंतक हैं, वो सबका एक कर्तव्य बनता है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को जगाने का काम करें। जो बच्चे हमारे भटकने का काम कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे आज के टाइम में जिनको कैडर नहीं दिया गया, जो बच्चे हमारे गलत दिशा में बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनको कैडर दे करके पार्टी की गाइडलाइन पे सही दिशा में चलने का काम करा जाए सम्मानित साथियों। कारण क्या सम्मानित साथियों? साहब कांशीराम जी ने कहा था कि एक पढ़े लिखे समाज के पास जब साहब कांशीराम जी गए, जब 20 साल के बच्चे के पास गए, जब काम नहीं करना होता,
जब बहाने लेने होते हैं सम्मानित साथियों, जब बहानों की बात करनी होती है तो बहाने बहुत हो जाते हैं सम्मानित साथियों, और जब काम करना होता है उसके लिए कितना भी काम छोड़ना पड़े वो पार्टी का काम करके रहता है सम्मानित साथियों। इसलिए जब साहब कांशीराम जी, एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करता हूं। जब साहब कांशीराम जी एक 20 साल के युवक के पास गए, उन्होंने कहा भाई मिशन में काम करने का काम करो और मिशन में समय देने का काम करो। उसने कहा साहब मेरी पढ़ाई का टाइम है, मैं अभी पढ़ाई कर लूं, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, उस टाइम पे मैं समय देने का काम करूंगा। साहब आगे चल गए, 25 साल के युवक के पास गए। 25 साल के युवक को बोला भाई अब तो आपकी नौकरी लग गई, जब नौकरी लग गई आप लोग मिशन में समय देने का काम करो। भाई यहाँ मिशन को आपकी जरूरत है, आप समय देने का काम करो। उस युवक ने कहा 25 साल के कि साहब अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है, मैं शादी कर लूं, पहले मेरी शादी हो जाए उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। फिर 30 साल के युवक के पास गए। 30 साल का व्यक्ति कहने लगा साहब मेरी नौकरी तो लग गई, अभी मेरी शादी हो गई, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे इनके लिए मैं कुछ तैयार कर दूं, सेटल कर लूं, उसके बाद मिशन में समय देने का काम करूंगा। साहब फिर 35 साल के व्यक्ति के पास गए। 35 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मैं अभी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने इनके लिए एक महल बनाया है, एक घर बनाया है, एक झोपड़ा बनाया है, मैं पहले इसको सेटल कर दूं और उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब 45 साल के व्यक्ति के पास गए। 45 साल के व्यक्ति ने कहा साहब मैंने जो कोठी बनाई है इस पे मैंने लोन लिया है, मुझे समय नहीं मिलता, और मैं जब इस लोन को उतार दूंगा, जब मेरा लोन उतार जाएगा, ये बड़े बड़े हो गए, +2 में आ गए, +2 के बाद आपके बच्चे हाई एजुकेशन में चले गए, अब तो समय देने का काम करो मिशन में। उसने व्यक्ति ने कहा साहब मैं समय देने का काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे +2 के बाद हाई एजुकेशन में चले गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इनको मुझे कोचिंग करानी पड़ रही है, मेरे पास ना तो पैसा बचता और ना ही समय बचता। जब मैं ड्यूटी से आता हूं तो अपने बच्चों को समय देने का काम करता हूं, मेरे पास समय नहीं बचता साहब, और जब मेरे बच्चे नौकरी लग जाएंगे उसके बाद मैं समय देने का काम करूंगा। साहब सीधे 60 साल के रिटायरमेंट व्यक्ति के पास गए। रिटायरमेंट को व्यक्ति पूछा भाई आपकी पेंशन आ रही है, कितनी पेंशन मिलती है? साहब मुझे 55,000 पेंशन मिलती है, बड़ी अच्छी बात है। भाई बाबा साहब की कृपया? हाँ साहब बाबा साहब की कृपया है, ये बाबा साहब की कृपया है। भाई आपके बच्चे नौकरी लग गए? हाँ साहब मेरे बच्चे 2 बच्चे थे, दोनों नौकरी लग गए। भाई आपका घर भी बन गया? हाँ साहब मेरा घर भी बन गया, बाबा साहब की कृपया है। तो फिर अब मिशन में समय देने का काम करो, अब तो मिशन में समय देने का काम करो। उस व्यक्ति के लफ्ज थे साहब मेरी बहुत इच्छा थी मिशन में समय देने की, मैं बहुत सोच रहा था मिशन में समय दूं, मैं सोच रहा था आर्थिक सहयोग करूं, लेकिन साहब मेरे घुटने काम नहीं करते, मेरे घुटने दर्द करने लगे, मैं चलने लायक नहीं रहा। इसलिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? बहानेबाजी से पूरा होने वाला नहीं है, बहानेबाजी से मिशन पूरा होने वाला नहीं है। कांशीराम तेरा मिशन अधूरा क्या बहानेबाजी से होगा पूरा? नहीं होगा। अपने बच्चों को कैडर देना पड़ेगा, अपने बच्चों को जमीन पे उतारना पड़ेगा, अपने बच्चों को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ेगा। ये राजनीतिक युद्ध है सम्मानित साथियों। हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। कहां से अधिकार मिलेंगे? हम दूसरों के आगे कटोरा फैला करके अधिकार लेना नहीं चाहते सम्मानित साथियों, वो भीख होगी। हम भीख नहीं लेना चाहते। अगर अधिकार चाहिए, अधिकार सत्ता से मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? सत्ता से। सत्ता कहां से आएगी? संगठन से। संगठन कहां से आएगा? संगठन कहां से आएगा सम्मानित साथियों? बूथ और सेक्टर कमेटी से। बूथ और सेक्टर कमेटी हमारी तैयार होंगी तब जाके हमारा संगठन तैयार होगा। संगठन तैयार होगा तो हम सत्ता में भागीदारी लेंगे, भागीदारी लेंगे तो हमारे अधिकार हमें मिलने का काम होगा सम्मानित साथियों। वो अधिकार मिलने का काम होगा जिसके लिए हजारों साल से हमारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियां चली गई सम्मानित साथियों। और हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो केवल एक इंतजार उनकी है, उनकी आंखें केवल इस चीज के रोशनी देख रही हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस चीज के लिए केवल एक ही चीज देखना चाहते हैं। उनकी आंखें इसलिए खुली हुई हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे सामने मेरी पार्टी की सत्ता आ जाए, मेरी सरकार आ जाए। यही है ना भाई, यही है ना मेरे साथियों। जब मेरे बुजुर्गों
आपकी यही मंशा है मेरे साथियों, यही मंशा है, तो क्यों ना हम नौजवान पीढ़ी को तैयार करें सम्मानित साथियों, जिसकी शुरुआत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी बीच में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दे के किया। सम्मानित साथियों, आपके बीच में आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को भेज करके इसकी शुरुआत कर दी। क्यों ना आप भी शुरुआत करें सम्मानित साथियों, इस भूगोल को बचाओ। सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी में युवाओं की भर्ती करो। जब वो युवा हमारे तैयार हो जाएं सेक्टर बूथ से, फिर उनको विधानसभा जिले पर लेकर आओ, और जब जिला और विधानसभा तैयार हो सम्मानित साथियों, वो हमारे युवा पक जाएं, उसके बाद स्टेट कमेटी और बहुत सारे पद। सम्मानित साथियों, इस प्रदेश को और देश को संभालने के लिए आपके पास बहुत सारे पद हैं। सम्मानित साथियों, आगे बढ़ाओ, सत्ता पर काबिज हो जाओ, सत्ता पर कब्जा करो, कोई आपको परोस कर नहीं देगा। सम्मानित साथियों, ये तो लेना पड़ेगा, आपको बढ़ना पड़ेगा, शक्ति दिखानी पड़ेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा न कहते हुए आज मैं केवल इतना ही समय लूंगा। मैं अपना पूरा समय, क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि जी आपके बीच में बोलने का काम करेंगे सम्मानित साथियों, अपना पूरा समय उनको देने का काम करूंगा। कुछ नारों के साथ आप लोग मेरे ताल में ताल मिलाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, काशीराम तेरी नेक कमाई, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। दूसरा माइक नहीं भाई, कोई माइक नहीं, कोई दूसरा माइक नहीं, कोई दूसरा कोड लेस रखा करो। काशीराम तेरी सोच ते, काशीराम तेरी सोच ते, चढ़गुंडों की छाती पर, चढ़गुंडों की छाती पर सार श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सार श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। हेलो, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਮਾਨੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੋਲਣਗੇ। आकाश कोरा है, आकाश कोरा है और चांद कुंवारा है और तारों के होठों पे नाम तुम्हारा है। ये पूरे ये उतारे ने कश्मीर तो लेके कन्याकुमारी तक। आकाश जी अज कले कले तारे दे उत्ते आकाश जी नाम तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। इन्हां शब्दां नाल मैं बेनती करदा दोए हथ खड़े करके नारे लाउणे आ। आकाश आनंद जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश आनंद जी संघर्ष करो साथ। और काशीराम साहब दे इस गुलदस्ते दे विच नीले आकाश ते चमकन जा रहा त्रो तारे दे वांगू भैन जी दा आकाश, कल्ले कल्ले वर्कर दा आकाश, बहुजन समाज दा आकाश, बहुजन समाज दे कल्ले कल्ले वोट दा आकाश, आकाश आनंद जी। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा
वह राज्यसभा की कई बार सदस्य रही। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बामसेफ, DS4 एवं BSP के जन्मदाता व संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पर उनको तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, मैं हमेशा अपने भाषण से पहले पूरी तैयारी करके आता हूं, पर आज के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं। आज के लिए मैंने सिर्फ मान्यवर साहब के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जानने की और ज़्यादा कोशिश करी और उनकी जो सोच, उनके जो तौर तरीके, उनकी जो नीतियां थी, उनको समझने की कोशिश करी और आज के समय में उन नीतियों को किस तरह से हम अपनाकर, इस्तेमाल कर कर उनके इस मिशन और मूवमेंट को एक नई ऊंचाइयों तक का दाखिला कराया गया। और वहाँ पे उन्होंने पहली बार ये जातिवाद, ये कास्टिज्म फेस किया कि जब छोटी जात जिसे कहते हैं SC, ST, OBC, उनके लिए पीने का पानी की पीने का घड़ा अलग था और ऊंची जातों का अलग था। मान्यवर साहब ने शायद पहली बार वो जातिवादी मानसिकता जो समाज में इस कदर थी, उन्होंने वो पहली बार फेस करी। परंतु जैसे जैसे उनका एजुकेशन करियर बढ़ता चला गया, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होते गए। मान्यवर साहब कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, ये मैंने सुना। परंतु जब वो DRDO में एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे, तो उनके ऑफिस में ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर जो छुट्टी दी जाती थी वो कैंसिल कर दी गई और उसके लिए उनके साथियों ने आवाज़ उठाई, जिसके चलते वो छुट्टी रिस्टोर कर दी गई। परंतु इस इंसिडेंट ने मान्यवर साहब को एक राजनीतिक रास्ते पे ले आए कि जो आज भारत में बाबा साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े दलितों के, शोषितों, वंचितों के सबसे बड़े नेता और मसीहा बन गए। साथियों, वो शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार इस बहुजन समाज के लिए त्याग दिया, आज हम उनके कुछ दिए हुए नारों को समझने की कोशिश करेंगे और उनको एक युवा के नज़रिए से एक 2023 में शायद समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों, मान्यवर साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा राजनीतिक जीवन इस बाबा साहब की दी हुई लाइनों पर आधार किया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो व संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये लाइन दी और मान्यवर साहब, आप सब जानते हैं, एक साइंटिस्ट की पोजीशन पे थे। उन्होंने पहले देश के कोने कोने में साइकिल से चलकर हमारे सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। उन्होंने पहले तो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का काम किया। तो पहले तो उन्होंने ऐसे शिक्षित किया, उसके बाद जब उन्होंने इस कौम को हमारे महापुरुषों के बारे में बताया, उनके संघर्षों के बारे में बताया, तो मान्यवर साहब ने फिर संगठित करने का काम किया। उन्होंने DS4
और बामसेफ बनाने का काम किया, जिसके तहत उन्होंने सर्व समाज में से गरीबों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों को संगठित करने का काम किया। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी कौम को और जागरूक करने के लिए एक किताब लिखी थी, चमचा युग। आज 2023 में उस किताब की उतनी ही अहमियत है जितनी उन्होंने जब पहली बार लिख के रिलीज करी थी तब थी। आज चमचों की शक्ल और अकल दोनों बदल गई है। पहले चमचे इस कदर हुआ करते थे कि वो दलित, पिछड़े समाज से नेता तो बनते थे, पर कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में नेता रहते थे और उनके इशारों पर हमारे समाज का उत्पीड़न और उनके वोट की खरीद फरोख्ती करते थे। परंतु आज वही चमचे थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अब नीला झंडा लेके घूमते हैं। वो भी आजकल बाबा साहब के नारे लगाते हैं, मान्यवर साहब के नारे लगाते हैं। हमें इन्हीं बेरूपियों से समझ के और संभल के रहना होगा। वो आएंगे, बातें करेंगे और आपको बहलाने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं कि अगर मान्यवर के सिखाए तैयार किए हुए सिपाही बीएसपी से अलग हो जाएं, तो ये बहुजन समाज कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा और यही उनकी वो साजिश है। इसी क्रम में कांशीराम जी ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, इस बार ये आप दोहराएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। साथियों, मान्यवर साहब ने जब ये नारा दिया तब उन्होंने 85 और 15% का कॉन्सेप्ट दिया था कि 85% वो समाज है जिस पे वो उधर से देखे तो 95 और 5% रह गई है। 95 और 5। साथियों, 95% में हम कौन कौन आते हैं? दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज। अब इसके साथ साथ अपर कास्ट में से गरीब, कमजोर और दबे कुचले सारे लोग अब बहुजन समाज के हिस्सा हो चुके हैं। और साथियों, वो 5% में वो मनुवादी सोच रखने वाले बाहुबली जो पीढ़ियों से राज करते आए हैं हमारे समाज पर, वो 5% में आके आज शामिल हो चुके हैं। तो मान्यवर साहब का ये नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी तब रखता था जब मान्यवर साहब ने पहली बार ये नारा दिया था। तो साथियों, इसी नारे को याद करते हुए हमें आज के ज़माने में समझना होगा कि किस तरह हम भाईचारे के आधार पर सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाज को अपने बहुजन समाज में जोड़कर आगे बढ़ने का काम करें, ताकि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में हम यहाँ पर राजनीतिक ताकत बनकर अपने सर्व समाज में से कमज़ोरों, गरीबों और पिछड़े समाजों का उत्थान और उनकी मदद कर सके। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। एक बार आप मेरे साथ दोहराइएगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। साथियों, आपका वन वोट, वन मैन वन वोट का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया और उसका सही फायदा, उसकी अहमियत मान्यवर साहब ने हमें दिलाई। मान्यवर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा एक वोट, तुम एक शख्स हो, तुम्हारा एक वोट, एक एक वोट उतना महत्वपूर्ण है कि जिससे तुम अपनी खुद की सरकार बना सकते हो, तुम खुद राजा और शासक बन सकते हो। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए साथियों, हमें ये चीज याद रखनी होगी कि आने वाले आम चुनाव में और उसके बाद विधानसभा आम चुनाव में अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल कर बसपा के
कैंडिडेट को ताकत इस्तेमाल करते हुए आप अपने एसपी और डीएम बनाएंगे, ताकि ज़मीनी स्तर पे जो रोज़मर्रा आपको परेशानी में आती है उसमें आपकी मदद करने के लिए पूरी सरकारी जगह, सरकारी नौकरियों में आपका पूरा हिस्सेदारी हो। साथियों, मान्यवर साहब का पहला नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही नारा सरकारी नौकरियों में भी लागू होता है। तो साथियों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब के इस बताए नारे को 2023 में हम इस तरह इस्तेमाल करें कि हर एक नौकरी, सरकारी नौकरी में अपने लोगों को पद दिलाने के लिए हम जी जान से मेहनत करें और रिजर्वेशन के लिए आगे लड़ते रहें। साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन को अधूरा कर रही बहन जी ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया, और आज मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे एक नारा मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी का मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा। तो साथियों, एक बार दोहराइए मेरे साथ, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का मिशन अधूरा, जी करेंगी पूरा। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का मिशन अधूरा, जी करेंगी पूरा। साथियों, इस नारे से हमने 2023 में स्पेशली युवा साथियों ने ये ठाना है कि बहन जी के इस मिशन में, साथियों यहाँ बैठे जितने भी युवा साथी हैं, एक बार जोर से नारा लगाएं, जय भीम। यहां तो सबने जय भीम जय भारत कर दिया, यहाँ पे सभी युवा हैं। मैंने दिल से युवा नहीं कहा, उम्र से युवा कहा। मुझे मालूम है कि आप सब दिल से आज भी उतने ही युवा हैं जितने छोटी उम्र के आपके बच्चे हैं। तो एक बार युवा साथी, जय भीम। साथियों, इसी चीज, इन्हीं कुछ कामों के ध्यान में रखकर बहन जी ने कई बार मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के कामों को, उनके संघर्ष को ध्यान में रखते हुए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के लिए कई बार मांग रखी है। और हम आज ये मांग दोबारा दोहराते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को इस समाज के मसीहा को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की दोबारा से विचार करना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए। ये बीएसपी की मांग। साथियों, साथ ही साथ अगर आप सब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को दिल से श्रद्धा और अर्पित करना चाहते हैं, तो आपको भी अब अपने घर से निकलकर अपने बच्चों के साथ उनको भी पार्टी और मिशन मूवमेंट में इन्वॉल्व करने का पूरा कोशिश करना चाहिए। और उनको अब पार्टी और मिशन मूवमेंट पे हर स्तर पे, हर कमेटी के स्तर पे उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको पदाधिकारी बनाना चाहिए, ताकि वो भी अब सड़क पर उतरकर हमारे मिशन मूवमेंट के लिए अपना हाथ बटा सके और मान्यवर साहब के इस मिशन मूवमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके और उनका मिशन पूरा कर सके। एक सोती हुई कौम को जगाकर उसको भारत के प्रधानमंत्री तक की गद्दी पर बैठाने का जो उनका सपना। आप सब आज यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी व छोटे बड़े पदाधिकारी, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे मीडिया बंधु, बहुजन मीडिया के सदस्य, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गायक और आप सब जिन्होंने हमारे सभी सदस्यों का, पार्टी के लोगों का मनोरंजन रखा, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्री काशीनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री काशीनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री काशीनाथ जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री काशी
आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों दा राज बदल दो। श्री काश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री काश आनंद जी जिंदाबाद, श्री काश आनंद जी जिंदाबाद, श्री काश आनंद जी जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अमर है। श्री आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, श्री आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, श्री आकाश आनंद जी आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाइट करो जी, बाइट। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। हेलो, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਆ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
बस